Hello everyone, welcome to Future Battle JPSC English Medium classes. Currently, we are covering physical geography. In last class, we were talking about origin of Earth and hypothesis related to it. There were two types of hypothesis, that is uniformitarian hypothesis and second is biparental hypothesis. यूनिफॉर्मेटेरियन हाइपोथेसिस को हम लोग यूनिपेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं एंड बायपेरेंटल हाइपोथेसिस इज आल्सो नोन एज कैटाक्लास्मिक हाइपोथेसिस. In last class we had already covered the hypothesis related to Kant, Laplace, Weizsäcker, Alvan, Cooper and Smith. These were uniparental hypotheses. Now in this class we will deal with the cataclysmic biparental hypothesis. The following scientists are related to biparental hypothesis, such as Buffon, Chamberlain, Jensen Jeffries, Russell and Lyttelton, Ruskin, A.C. Banerjee and Hoyle. First is Buffon's collision hypothesis. Buffon's hypothesis that Sun's supermassive gaseous mass collided with a giant revolving star. Means when the supermassive gaseous mass collided with the revolving star, then small bodies of gaseous substances got separated from the main body, and these bodies in future condensed and formed the planets of the solar system. There is no mathematical explanation of this hypothesis. This is first hypothesis in biparental hypothesis, that is Buffon's collision hypothesis. Second hypothesis in this cataclysmic or biparental hypothesis is tidal hypothesis of Jensen Jeffries, that is 1911 to 1926 के बीच में इन्होंने दिया था. The British residents Jensen Jeffries, Harold Jeffries hypothesizes that giant star was passing near the sun, then the sun is due to the attraction of the passing giant star. Tide was generated on the surface. This is saying that there is a sun and another giant star is passing near the sun in a close relation with the sun, then there is a tidal force generated from the sun that is small in size in comparison with that giant star. Okay, it was thin on both sides. We were talking about the tidal shape that emerged from the sun. It was thin on the both sides and thick in the middle. This happened because of coming closer to the star and then moving away. Due to less attraction from the distance, the substance was less attracted by the tide, so the shape become like cigar. मतलब कि in future और मतलब कि बहुत सारे टाइम पास होने के बाद वो जो टाइड का शेप जो था वो सिगार के टाइप में कन्वर्ट हो गया. This matter came out of sun and started revolving around it. Gradually it condensed to form various planets of solar system. This is the reason that size of 9 planets is small on both sides, but size of the planets is middle in the big. मतलब कि टाइडल फोर्स सन के एक सुपरनोवा स्टार्स के पास होने की वजह से, सुपरमैसिव स्टार के पास होने की वजह से सन से जो भी टाइडल फोर्स निकला वो एक सिगार का फॉर्म ले लिया. एंड इस सिगार के फॉर्मेशन की वजह से ही इन मतलब कि बाद में जो भी प्लैनेट्स का जो शेप है वो दो साइड से चपटा है या फिर दो साइड से वो पतला है और बीच में जो है वो मोटा है. बट द क्रिटिक्स सेज दैट दिस डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द रोटेशन ऑफ प्लैनेट इन अपोजिट डायरेक्शन. मीन्स कि द क्रिटिक्स दैट क्रिटिसाइजेस द tidal hypothesis of Jensen Jeffries, they talk about the planets revolve around the sun in two direction, ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट. मतलब कि दोनों के डायरेक्शन में डिफरेंस कब क्यों है, जब वो एक ही टाइडल फोर्स की वजह से वो लोग जनरेट हुए हैं
जैसे कि यहाँ पे एक सन है एंड अगर एक सुपर मैसिव स्टार इधर से पास हो रहा है तो इधर से इधर पास होगा तो वो हमारा जो भी प्लैनेट का फॉर्मेशन होगा, जो गैसेस जो भी निकलेंगे यहाँ से और टाइड का फॉर्मेशन करेंगे, वो भी इसी डायरेक्शन में सन का रोटेशन करना चाहिए था। बट वो ऐसा नहीं करते हैं, कुछ कुछ प्लैनेट्स दूसरे डायरेक्शन में भी मूव करते हैं। ऐसा क्यों है, ये चैलेंज करते हैं क्रिटिक्स जीन्स एंड जेफरीज को। दिस इज सेकेंड। Third hypothesis in this line is of Chamberlain and Moulton's planet-simul hypothesis. अभी तक हम लोगों ने कोलाइजन हाइपोथेसिस देखा है। कोलाइजन हाइपोथेसिस है हमारा बफन्स का। सेकेंड इज टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस हमें जीन्स एंड जेफरीज ने दिया है। थर्ड इज प्लैनेट सिमल हाइपोथेसिस। इसे हमें चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया है। अब इसे जान लेते हैं हम लोग आगे। अकॉर्डिंग टू दिस द प्लैनेट इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम ए हॉट गैसियस नेबुला बट फ्रॉम ए सॉलिड बॉडी। मतलब कि इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा बोला कि प्लैनेट जो है वो किसी भी गैसियस नेबुला की वजह से उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बट ड्यू टू ए सॉलिड मैटर। इनिशियली देयर वेर टू ह्यूज स्टार्स। एक्सप्लेनेशन है ये। इनिशियली देयर वेर टू ह्यूज स्टार, द सन एंड द companion other star. There is a sun and there is a companion other star. When the other huge star approached the sun, due to its attraction power, innumerable particles were separated from the surface of sun. कि वहाँ पर जब भी एक सन के पास से दूसरा मैसिव स्टार गुजरा तो यहाँ सन के जो पार्टिकल्स थे वो इससे सेपरेट हो गए। दिस टुगेदर बिकम द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स। मतलब कि नॉट ओनली सन बट अदर स्टार, अदर मैसिव स्टार दैट इज ऑल्सो ए सॉलिड बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द formation of Earth and the other planets. This hypothesis came under biparental concept, though this theory an attempt has been also made to explain the origin, structure, origin of ocean, continents and formation of mountain etc. मतलब कि इस थ्योरी के हिसाब से जो भी ओरिजिन स्ट्रक्चर का, जो अर्थ का जो ओरिजिन है, स्ट्रक्चर है, एंड द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स का जो फॉर्मेशन, माउंटेन का जो फॉर्मेशन हुआ है, उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए के बारे में सोचा गया। थर्ड इज बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल एंड लिटनटन। इससे पहले हम लोगों ने प्लैनेट सिमल हाइपोथेसिस पढ़ा जो कि चैम्बरलिन एंड मोल्टन का था। थर्ड इज फोर्थ इज बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल एंड लिटनटन। दे बिलीव दैट देयर वेर मैनी स्टार इन द गैलेक्सी इन ए पेयर। हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि पेयर के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। बिफोर द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम देयर वॉज ए स्मॉल स्टार नियर आवर सन. When the moving star passed near these pair of stars, the tidal body got separated from the smaller star. It was the fission of the tidal mass that formed the planets of the solar system. This hypothesis is made on the basis of facts related to momentum. मतलब बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस जो है वो है मोमेंटम से हमारा रिलेटेड है। मतलब कि सोलर सिस्टम के ओरिजिन से पहले ही एक और सन प्रेजेंट था हमारे सन के नियर में, जो कि व्हेन ए मूविंग स्टार पास्ड थ्रू दिस पेयर ऑफ स्टार। मतलब कि इससे पहले हमने देखा चैम्बरलिन और मोल्टन में कि एक सन था और दूसरा सॉलिड मास था, वो इसके नियर से पास हो रहा था। बट यहाँ पे बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस में है कि दो सन्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे हमारे सोलर सिस्टम में और एक थर्ड जो स्टार है वो इसके नज़दीक से जब पार हुआ तब यहाँ पर जो टाइडल मास जनरेट हुआ उससे जो है वो हमारा हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ है। और जो भी यहाँ पे जो भी दो सन के कंपैरिजन में जो दूसरा स्टार था वो मतलब फ्यूजन की वजह से वो टूट गया और
सारे प्लैनेट्स का जो है फॉर्मेशन हुआ। फिफ्थ इज फिशन हाइपोथेसिस ऑफ रॉसगन। He explained the origin of pair stars and said that in past there was a huge star which gradually getting compressed. Due to the contraction, his speed started increasing. मतलब कि यस, फिजन हाइपोथेसिस ऑफ रॉसगन के अनुसार ये डिफाइन, इट ऑल्सो डिफाइंस अबाउट द origin of pair cell. In binary star hypothesis of Russell or Litton, they did not talk about the origin, how the two stars generated in our solar system, but in fission hypothesis of Rosgan they also talk about the origin of the pair stars. इसके हिसाब से when a huge star was contracting and compressed, then its speed increased regressively due to the and it started rotating rapidly. Due to the rapid rotation, that star split into two parts. रैपिड रोटेशन की वजह से जो भी एक ह्यूज स्टार था उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था उसकी वजह से फर्स्ट थिंग इज स्पीड एंड अदर थिंग इज कॉन्ट्रैक्शन, दोनों की वजह से वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया एंड वन पार्ट रिमेन ए मेन स्टार एंड अदर जो स्मॉल पार्ट था वो हमारा प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गया बाद में. एट दैट टाइम फ्रेगमेंटेशन एंड अनदर स्टार पास्ड बाय देन द टाइडल मास वाज जनरेटेड फ्रॉम द स्मॉलर स्टार. मतलब कि अब जो स्मॉलर स्टार था वो प्लैनेट में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो अब जाकर जब यहाँ पर जो थर्ड स्टार है वो सोलर सिस्टम के अराउंड से पास हुआ, देन द टाइडल मास वाज जनरेटेड फ्रॉम द स्मॉलर स्टार which later formed the planet. He has presented Russell's hypothesis in redefined form. इसके पहले जो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल एंड लिटन था उसी को इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया है. सिक्स्थ इज सेफाइड हाइपोथेसिस ऑफ AC बनर्जी. ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं. He had called the star bigger than the sun as a Cepheid. मतलब कि अभी तक हम लोगों जो मैसिव स्टार बोल रहे थे जिसे उसे इन्होंने नेम दिया और इसे सेफाइड का. इट्स साइज कीप्स ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग. जो भी ह्यूज स्टार था उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट होता रहता था और वो एक्सपेंड होता रहता था. ड्यू टू विच इट्स लाइट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से इसके लाइट में हमेशा इंक्रीज होता रहता था. Sir Eddington and Goodrock has discovered the Cepheid star prior to Banerjee's hypothesis. मतलब कि बैनर्जी के हाइपोथेसिस से उन्होंने नाम नहीं दिया था सेफाइड को, बस उन्होंने वो जो सन था उसे सेफाइड बोला था, जबकि सेफाइड का जो भी आविष्कार था उसे सर इडिंगटन एंड गुडरॉक ने किया था. ऑन द बेसिस ऑफ द सेम डिस्कवरी, Banerjee presented his hypothesis in 1942. He said that when another giant star passed near the Cepheid star split into many and diffused body due to the tidal effect. मतलब कि देखिए इस सेफाइड के पास से अनदर जब नियर जाइंट स्टार पास हुआ तो वो कोलाइड हो गया. कोलाइड क्यों हुआ? टाइडल इफेक्ट की वजह से हुआ. एंड बाद में जो भी द प्लैनेट्स वेयर कंडेंस्ड फ्रॉम दीज डिफ्यूज्ड बॉडीज. जब वो जो भी सेफाइड था हमारे सोलर सिस्टम में पहले से प्रेजेंट, वो जब डिफ्यूज हो गया बाद में उसका कंडेंसेशन हुआ, इसकी वजह से हमारे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ. अब आगे हमारा बचा हुआ है सुपरनोवा हाइपोथेसिस, बिग बैंग हाइपोथेसिस, Allen Guth hypothesis and small explosion theory of Jayant Vishnu Narlikar of India. ये चार हमारे बचे हुए हैं. सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ फ्रेड हॉयल.
This hypothesis is also similar to the binary star hypothesis. The only difference is that the temporary star in the pair star is सुपरनोवा. यहाँ पर हमारा सुपरनोवा का कॉन्सेप्ट आता है. इसके पहले जो भी जितने भी हाइपोथेसिस थे वो एक तरह से सुपरनोवा ही थे, लेकिन वो उन्होंने सुपरनोवा टर्म यूज़ नहीं किया था. यहाँ पर जो फ्रेड हॉयल है उन्होंने एक सुपरनोवा टर्म यूज किया है. The only difference is that the temporary star in this pair is supernova. मतलब कि जब जो भी दो स्टार थे उनके बगल से जो स्टार पार हो रहा है उसे उन्होंने सुपरनोवा कहा है. The new star is temporary and self-exploding star that suddenly ignites and gradually fades away. मतलब कि उसका सडन अपीयरेंस था और सडन वो फेड अवे भी हो जाता था. It is hypothesized that when the star exploded in the front of the sun, this star got projected in the opposite direction. मतलब कि वो यहाँ पे सन है और वहाँ यहाँ पर वो एक्सप्लोड हो गया. तब जो भी पार्टिकल्स थे वो सभी डायरेक्शन में गए. इस डायरेक्शन में गए, इस डायरेक्शन में भी गए, इधर पीछे भी गए और राइट साइड भी गए. At the same time another star passed near him in his path. मतलब कि उसी समय एक और भी स्टार वहाँ से गुजर रहा था. Now two forces started working in that star. With the help of both the rebound force and the gravitational force of the visiting star, the star merged into space. But the gas body produced by the explosion started revolving around the major star, which later condensed to give birth to planet. यहाँ पर भी 3 स्टार हैं रिलेटेड. वन इज़ द सन एंड अदर जो स्टार वहाँ पर जाइंट स्टार नियर से पास हो रहा है वो हमारा है सुपरनोवा. एंड जब वो ब्लास्ट हो गया तो तभी वहाँ से एक और वहाँ से स्टार पास हो रहा था. और जो पहले से सन है और जो एक नियर से स्टार पास हो रहा है उसके दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी वहाँ पे स्टार था पहले से सुपरनोवा स्टार था वो स्पेस में मर्ज हो गया. एंड जो उसकी वजह से जो हमारा गैसियस बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो जो है हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगा. और बाद में वो विच लेटर कंडेंस्ड एंड गिव बर्थ टू प्लैनेट्स. और जो भी गैसियस जो मटेरियल्स था वहाँ पर बाद में कंडेंस्ड होकर वो प्लैनेट का फॉर्मेशन किए. After the above hypothesis, a new hypothesis has come of Big Bang and inflation theory. The thinkers of this hypothesis are Lemaître and Alan Guth. A brief description is present है. हाँ, यहाँ पर हमारा सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ फ्रेड हॉयल कंप्लीट हो जाता है. अब हमारा है बिग बैंग हाइपोथेसिस एंड नाउ वी विल डील विद द बिग बैंग हाइपोथेसिस एंड इन्फ्लेमेटरी थ्योरी ऑफ Lemaître and Alan Guth. The Big Bang theory was propounded by the Georges Lemaître of Belgium for the origin of universe, Milky Way and solar system. 3 चीज़ ये लोग डिफाइन करते हैं: origin of universe, solar system and Milky Way. The Robert Wagner presented the detailed explanation of this theory in 1967. ये हमारी जो Big Bang theory है वो पहले ही आ चुकी थी, that is in 1894 to 1896. बट बाद में इसे रॉबर्ट वैगनर ने डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया in 1967. Efforts have been made to solve the problem of the origin of the universe, galaxies and their member stars and planets on the basis of existence of invisible components of the universe, that is dark matter. यहाँ पे हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट डार्क मैटर का हमारा यहीं से पर आता है बिग बैंग थ्योरी में. और इसी डार्क मैटर के कॉन्सेप्ट को लेकर जो भी हमारे रॉबर्ट वैगनर और जॉर्जिस लेमेंटर थे इन्होंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज, यहाँ के जो मेंबर स्टार्स हैं और यहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए सोचा. साइंटिस्ट हैव 2 अल्टरनेटिव आइडियाज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मिल्की वे. मिल्की वे के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 2 अल्टरनेटिव आइडियाज़ हैं. दैट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर मस्ट हैव बीन हॉट और कोल्ड फॉर्म. मतलब कि डार्क मैटर जो है हमारे 2 फॉर्म में अवेलेबल होगा, डैट इज़ हॉट और डार्क, हॉट और कोल्ड. In the case of hot dark matter, the galaxies will be far away when
when in the case of cold matter they will be in cluster. At present different galaxies are located in close clusters. हॉट डार्क मैटर में जो हमारे तो मतलब हॉट, अगर हॉट डार्क मैटर रहता है तो हमारे जो भी गैलेक्सीज हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर में सेपरेट होंगे, बट अगर क्लोज डार्क कोल्ड डार्क मैटर रहता है तो वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अवेलेबल होंगे। तो और जो प्रेजेंट कंडीशन है हमारा, वो हमारा ज़्यादा सूटेबल होता है कोल्ड डार्क मैटर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो भी जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो क्लोजली ये लिंक्ड है। According to Big Bang theory, the universe originated about 15 billion years ago due to the sudden loud explosion of huge fireball containing dense material and the radiation generated from it. जो अभी का यूनिवर्स है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी जो है एक डार्क मैटर का, जो डार्क और या फिर डेंस मैटर का एक ह्यूज फायर बॉल था, वो कोलाइड हो गया और कोलाइड नहीं हो गया, वो एक्सप्लोड हो गया, और जो उससे जो सडन एक्सप्लोजन हुआ और उससे जो रेडिएशन इमर्ज हुआ उसकी वजह से हमारा गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 15 बिलियन ईयर्स एगो देयर वाज ए एक्सप्लोजन। ओके, soon dark matter was formed due to the separation of normal substances. Due to the aggregation of these dark substances, many bodies were formed. जो भी ये डार्क जो भी सब्सटेंस था उसके एग्रीगेशन की वजह से बहुत सारे बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ एंड नॉर्मल सब्सटेंसेस बिगैन टू एक्यूमुलेट अराउंड दीज बॉडीज। जो भी बॉडीज़ थे हमारा डार्क मैटर एक्सप्लोड होने के बाद जो भी हमारा बचा हुआ था उसके अराउंड जो है वो हमारा सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होने लगे और उसकी वजह से बाद में गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। इट इज़ नोन दैट इन द बिगिनिंग द यूनिवर्स वाज वेरी स्मॉल एंड इट स्टार्टेड एक्सपेंडिंग एट रैपिड पेस। एज ए रिजल्ट द गैलेक्सीज दैट वेयर इनिशियली नियर बाय वेयर कॉन्स्टेंटली डिस्टेंसिंग फ्रॉम ईच अदर। मीन्स कि हमारा जो भी डार्क मैटर था वो एक्सप्लोड हुआ, उसके बाद जो है उसके अराउंड जो भी मटेरियल बचा हुआ था उसके अराउंड जो भी सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होने लगे, और एक्यूमुलेट होने के बाद हमारा गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ और वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगा। शुरू में तो जो भी गैलेक्सीज के जो भी मटेरियल्स थे वो क्लोजली एक्यूमुलेटेड थे, बट बाद में वो सेपरेट होने लगे, और ये जो सेपरेशन है वो आज भी हो रहा है, क्योंकि आज भी जो हमारे यूनिवर्स है वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। इट हैपेंड फ्रॉम द टाइम ऑफ क्रिएशन अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो टू द प्रेजेंट डे। ऑब्वियसली क्योंकि आज भी हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। द यूनिवर्स हैज़ बिन कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग इन साइज एंड इट्स मैटर हैज़ बिन कूलिंग। अभी भी जो है उसका यूनिवर्स का जो भी मैटर है वो अभी भी कूल डाउन हो रहा है, जो कि एक्सप्लोजन के बाद से ही हॉट है। देयर वाज ए फियर्स एक्सप्लोजन ऑफ गैलेक्सीज एंड द स्टार ऑफ द ईच गैलेक्सी वेयर फॉर्म्ड बाय द इननमरेबल बॉडीज मेड अप ऑफ एग्लोमरेशन ऑफ सब्सटेंसेस रिलीज्ड फ्रॉम इट। अभी जो हमारी गैलेक्सीज है वो एक्सप्लोजन के बाद जो बॉडीज़ क्रिएट हुई थी उसके अराउंड जो हमारा मैटर जो एक्यूमुलेट हुआ था उसकी वजह से ही जो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ है वो आज भी प्रेजेंट है हमारे गैलेक्सीज में। सिमिलरली द प्लैनेट्स वेर फॉर्म्ड बाय द एग्लोमरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ ईच स्टार। यहाँ पे डार्क मैटर के एक्सप्लोड होने की वजह से हमारा गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ था, एंड इसी के बेसिस पर हमारे बाद में एक्सप्लेन किया गया कि जैसे कि डार्क मैटर एक्सप्लोड हुआ था वैसे ही हमारा यहाँ पर जो भी सन है या स्टार है वो एक्सप्लोड हो रहा है ड्यू टू एजिंग, एंड वहाँ पर बाद में एग्लोमरेशन की वजह से हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो एक्सप्लोजन के बाद में जो भी मैटर बचते हैं उसके बाद। This theory is also unable to solve the problems of the origin of the universe and galaxies, stars and planets, and he propounded the inflationary theory। मतलब कि बिग बैंग थ्योरी भी पूरी तरीके से हमारा
जो ओरिजिन ऑफ स्टार और गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, इसलिए बाद में इन्फ्लेशनरी थ्योरी को दिया गया। Alan Guth's hypothesis is that the actual density is much greater than the density of visible mass of universe. यहाँ बिग बैंग थ्योरी जो दिया गया था वो हमारा दिया गया था जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा, और बाद में हमारा एलन गथ के द्वारा जो हाइपोथेसिस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी डेंसिटी है यूनिवर्स की इज मच लार्जर देन द यूनिवर्स डेंसिटी दैट वी नो। From this, it is concluded that the invisible time matter exists in universe। मतलब कि हमारा जो कैलकुलेटेड डेंसिटी है और जो ओरिजिनल डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसके हिसाब से कि कुछ ऐसे इनविजिबल टाइम मैटर प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में जो हमें दिखाई नहीं देते हैं बट वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से द ओरिजिनल मास ऑफ द यूनिवर्स है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऑल्दो द बिग बैंग एंड द इन्फ्लेशन थ्योरीज आर नियरली आइडेंटिकल बिकॉज दे हैव मैनी बिलीव्स इन कॉमन। इन्फ्लेशन थ्योरी ऑफ द एलन गथ एंड Lemaitre theory of that is Big Bang hypothesis of Lemaitre is similar in many perspectives because of the similar beliefs. The only difference between them is relates to the type of events that occurred in the second of the explosion of the giant fissure। मतलब कि जो भी जाइंट फिशर में जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसमें विद इन सेकेंड में जो डिफरेंस होते हैं उसी पर ये जो हमारा बिग बैंग थ्योरी एंड एलन गट्स का जो इन्फ्लेशनरी थ्योरी है उन दोनों में डिफरेंस जो है वो मतलब कि बस माइनर सेकेंड्स का है, और उसी में जो रिएक्शंस होते हैं उसी में। अकॉर्डिंग टू inflation theory, there was a rapid expansion of giant fire mass. During this process, within a fraction of second, the size of universe increased many folds। मतलब कि जैसे बिग बैंग थ्योरी में अभी भी बोला गया है कि अभी भी हमारे यूनिवर्स जो है वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशनरी थ्योरी ऑफ एलन गथ, उनके हिसाब से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो है हमारे यूनिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था और मैनी फोल्ड्स में एक्सपेंड हो गया था, जिसको अभी तक भी पता नहीं लगाया जा चुका है। गैलेक्सीज वेर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क मैटर एंड स्टार्स वेर फॉर्म्ड बाय द बॉडीज formed from the group of substances propagated by the explosion, and the planets were formed from the bodies of the aggregation and organization of substances produced by the explosion of star। कि यहाँ पर तीन चीज़ के फॉर्मेशन के बारे में हमारा जो एलन गथ है वो के हाइपोथेसिस बताता है कि गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हमारा कैसे हुआ। तो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हमारा हुआ है एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क मैटर की वजह से। गैलेक्सीज वेर फाउंड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क मैटर। सेकेंड इज स्टार्स। स्टार्स वेर फाउंड बाय द बॉडीज फाउंड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय देयर एक्सप्लोजन। मतलब कि जो डार्क मैटर जो था उसमें जो एक्सप्लोजन की वजह से जो भी हमारा सब्सटेंस था उसकी वजह से गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ है, सॉरी स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ है। गैलेक्सीज का डार्क मैटर की वजह से और स्टार्स का फॉर्मेशन जो एक्सप्लोजन की वजह से जो उसके अराउंड सब्सटेंस हुआ था उसकी वजह से। एंड थर्ड जो है हमारा प्लैनेट और अर्थ सब है वो जो भी बॉडीज़ हैं जो है एग्रीगेशन और एक्सप्लोजन, और भी जो सन है स्टार जो था उसमें एक्सप्लोजन की वजह से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो तीनों रिलेटेड है। डार्क मैटर के एक्सप्लोजन की वजह से हमारा गैलेक्सीज का हुआ है, फिर हमारा स्टार्स का हुआ है एक्यूमुलेशन की वजह से, थर्ड है स्टार्स में एक्सप्लोजन की वजह से हमारा प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ है। ये था, यहाँ तक हो गया था इन्फ्लेशनरी थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी जो हमारा रिलेटेड था। अब उसके बाद है हमारा आफ्टर द ग्रेट एक्सप्लोजन नाउ ए न्यू हाइपोथेसिस हैज केम ऑफ द स्मॉल एक्सप्लोजन थ्योरी। ये हमारा सबसे रिसेंट यहाँ पे डेवलपमेंट है स्मॉल एक्सप्लोजन थ्योरी। इसे दिया गया है, इसका ओरिजिन है जयंत विष्णु नार्लिकर जो कि हमारे इंडिया के ही जियो साइंटिस्ट हैं। हिज आइडियल वाज फ्रेड हॉयल एंड बारबीज। मतलब कि इनके जो भी आइडियल थे वो फ्रेड हॉयल थे। फ्रेड हॉयल का हमारा कौन सा था, सुपरनोवा कॉन्सेप्ट। फ्रेड हॉयल ने सुपरनोवा कॉन्सेप्ट दिया था, उसी
इसके आइडियल के बेसिस में ये जो हमारे जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं उन्होंने स्मॉल एक्सप्लोजन थ्योरी दिया है। इन शॉर्ट दिस थ्योरी इज कॉल्ड HBN, इसी शॉर्ट में HBN कहते हैं। एंड इसका नाम है स्मॉल एक्सप्लोजन थ्योरी। द प्रिंसिपल इज नेम्ड बाय steady state model, which means that the universe remains in the same state of eternity. But according to Big Bang theory, universe is still expanding, and according to Alan Guth hypothesis of inflationary theory, उसके हिसाब से भी विदिन सेकेंड्स जो है वो हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो गया था। बट अकॉर्डिंग टू दिस जयंत विष्णु नार्लिकर थ्योरी, स्मॉल एक्सप्लोजन थ्योरी, उसके हिसाब से जो हमारा यूनिवर्स है वो अभी स्टडी स्टेट में है और अभी एक्सपैंड नहीं कर रहा है। दिस थ्योरी इज प्रेजेंटेड एज ए चैलेंज टू द करेंटली एक्सेप्टेड बिग बैंग थ्योरी। ऑब्वियसली बिग बैंग थ्योरी इज उसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट किया जा चुका है, उसे हाइपोथेसिस हम लोग नहीं कहते हैं। पहले भले ही वो हाइपोथेसिस था बट उसे पूरे यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, नॉट यूनिवर्स, वो वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है हमारे अर्थ पर, इसीलिए उसे थ्योरी कहते हैं। बट इससे चैलेंज किया है हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने फ्रॉम द स्मॉल एक्सप्लोजन थ्योरी, और उन्होंने बोला है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो अभी स्टेडी स्टेट में है, वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है। इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स इट इज़ बीइंग कॉल्ड रिबेल प्रोपोजिशन, इसका नाम दिया गया, इट्स ए निक नेम, इसे रिबेल प्रोपोजिशन कहते हैं। इन द बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स इज एज्यूम टू बी एसोट्रोपिक एंड होमोजीनस। बिग बैंग थ्योरी में हमारा जो यूनिवर्स है उसे आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनस कहता है। डैट इज द यूनिवर्स इज सेम इन एवरी डायरेक्शन एंड एवरीवेयर। नाउ ग्रेजुअली द नंबर ऑफ फिजिक्स साइंटिस्ट इज इंक्रीजिंग who are not able to digest the Big Bang theory at all. It is now seen that the distribution of the matter is not uniformly distributed everywhere in the universe. According to Big Bang theory, there was a matter that is uniformly expanded in all direction. मतलब कि इस अगर यहाँ पर हमारा सन है तो इस डायरेक्शन में भी हमें स्टार्स मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे। लेकिन अभी जो हमारा जो स्मॉल एक्सप्लोजन थ्योरी है उसके वो इस बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है। देयर इज ए डीप रेगुलरिटी इन इट फ्रॉम irregularity in it from place to place. Considering the scale of billions of stars in a galaxy, billion of galaxy in a cluster and supercluster, there is a clear regularity in the distribution of the supercluster in the universe. Therefore, the proposal of the continuous expansion of universe that started with the great explosion theory is rejected by this. मतलब कि सभी डायरेक्शन में हम देखते हैं कि कुछ क्लस्टर हैं, कुछ अदर गैलेक्सीज हैं। मतलब कि अगर एक गैलेक्सी एक्सपेंड होते रहेगी तो वो ऑब्वियसली अदर गैलेक्सी से टकरा जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इसकी वजह से कहा जाता है कि यहाँ हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है। दिस इज़ वेयर नार्लिकर एक प्रोपोजिशन ऑफ मैटर इन्फ्लेशन बिगिंस। अभी जो है ये हमारा जो भी उन्होंने दिया है नार्लिकर ने, वो अभी भी बिगिनिंग स्टेज में है, उसे अभी पूरी तरह से प्रूव नहीं किया जा चुका है और अभी भी वो फुल्ली एक्सेप्टेड नहीं है। बट एक ये बिगनिंग है जिससे कि बिग बैंग थ्योरी को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही सेड दैट द मैटर लाइक बिग बैंग मस्ट हैव बीन ए सडन एक्सपेंशन, नॉट ए ग्रेजुअल एक्सपेंशन, and the universe will continue to be a permanent state or nearly stable state until now and in future also. मतलब कि यहाँ पर स्मॉल एक्सप्लोजन थ्योरी ऑफ जयंत विष्णु नार्लिकर के जी के अनुसार ये हमारा जो यूनिवर्स है वो स्टेडी स्टेट मॉडल है और अभी या फिर इन नियर फ्यूचर जो है वो हमारा एक्सपेंड नहीं होने वाला है। ये हमारा कंप्लीट होता है, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ अर्थ। एंड इससे रिलेटेड फिगर आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप उसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। अभी ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए।
हम लोगों ने यहाँ पर दो टाइप के देखे हाइपोथेसिस, दैट इज यूनिपेरेंटल हाइपोथेसिस एंड बायपेरेंटल हाइपोथेसिस। एंड इससे रिलेटेड लगभग यूनिपेरेंटल में हम लोगों ने 6 हाइपोथेसिस को देखा एंड बायपेरेंटल में भी हम लोगों ने 10 हाइपोथेसिस को देखा। तो इन टोटल 16 हाइपोथेसिस आर रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जिसे हमें एग्ज़ाम में लिख कर आना है। चलिए, थैंक यू। और इसी तरह आगे भी क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैं बता देती हूँ अभी, डैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। हमारा अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो अब इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पर हम लोग मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।